Everyone picked up his knife and fork and began eating. I began crying instead, for by this time I was afraid to venture anything more. सभी ने अपने छुरी कांटे उठाए और खाना प्रारंभ कर दिया। मैंने खाने की बजाय रोना आरंभ कर दिया, क्योंकि इस समय तक मैं और कुछ हिम्मत करने से डरने लगी थी। But this eating by formula was not the hardest trial in that first day. Late in the morning, my friend Judivin gave me a terrible warning. Judivin knew a few words of English, and she had overheard the pale faced women talk about cutting our long, heavy hair. Our mothers had taught us that only unskilled warriors who were captured had their hair shingled by the enemy. Among our people, short hair was worn by mourners and shingled hair by cowards. We discussed our fate and some moments, and when Judivin said, "We have to submit because they are strong," I rebelled. "No, I will not submit. I will struggle first," I answered. I watched my chance, and when no one noticed, I disappeared. I crept up the stairs as quietly as I could in my squeaking shoes. My moccasins had been exchanged for shoes. Along the hall, I passed without knowing whither I was going. Turning aside to an open door, I found a large room with three white beds in it. The windows were covered with dark green curtains, which made the room very dim. Thankful that no one was there, I directed my steps toward the corner farthest from the door. On my hands and knees, I crawled under the bed and huddled myself in the dark corner. लेकिन इस एक नियम के अनुसार भोजन करना उस दिन पहले दिन की सबसे कठिन परीक्षा नहीं थी। प्रातः बाद में मेरी मित्र जुडविन ने मुझे एक भयंकर चेतावनी दी। जुडविन को कुछ अंग्रेजी शब्दों का ज्ञान था, और उसने संयोगवश उस पीले चेहरे वाली महिला को हमारे लंबे भारी बालों को काटने के बारे में बात करते हुए सुन लिया था। हमारी माओ ने हमें सिखाया था कि केवल युद्ध में पकड़े गए अप्रशिक्षित योद्धाओं से ही बाल उनके शत्रुओं द्वारा छोटे छोटे काट दिए जाते थे। हमारे लोगों में मृत्यु का शोक करने वाले लोग छोटे बाल रखते थे और कायर लोग बहुत छोटे बाल। हमने कुछ क्षण चर्चा की कि हमारे साथ क्या होने वाला था, और जब जुडविन ने कहा हमें झुकना पड़ेगा क्योंकि वे शक्तिशाली हैं, मैंने विद्रोह कर दिया। मैंने उत्तर दिया, नहीं, मैं नहीं झुकूंगी, मैं पहले संघर्ष करूंगी। मैंने अपनी बारी पर नजर रखी, और जब किसी ने ध्यान नहीं दिया तो मैं गायब हो गई। मैं अपने चर चर की आवाज़ करते जूतों में जितना चुपचाप संभव था सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गई। मेरे नर्म फ्लैट जूतों के बदले मुझे साधारण जूते दे दिए गए थे। मैं हॉल से होकर गुजरी बिना यह जानते हुए कि मैं कहाँ जा रही थी। एक खुले दरवाजे की ओर मुड़ने पर मैंने वहाँ एक बड़ा सा कमरा पाया जिसमें तीन सफ़ेद पलंग थे। खिड़कियाँ गहरे हरे रंग के पर्दों से ढकी थी, जिसके कारण कमरे में बहुत धुंधलापन था। ईश्वर का धन्यवाद कि वहाँ कोई नहीं था। मैंने कमरे में दरवाजे से सबसे अधिक दूर वाले कोने की ओर अपने कदम बढ़ाए। अपने हाथों और घुटनों पर रेंग कर मैं पलंग के नीचे घुस गई और उस अंधेरे कोने में जाकर सिमट गई। From my hiding place, I peered out, shuddering with fear. Whenever I heard footsteps nearby, though in the hall, loud voices were calling my name, and I knew that even Judwin, was searching for me. I did not open my mouth to answer. Then the steps were quickened and the voices became excited. The sounds came nearer and nearer. Women and girls entered the room. I held my breath and watched them open closet doors and peep behind large trunks. Someone threw up the curtains, and the room was filled with sudden light. What caused them to stoop and look under the bed? I do not remember. I do not know. I remember being dragged out, though I resisted by kicking and scratching wildly. In spite of myself, I was carried downstairs and tied fast in a chair. I cried aloud, shaking my head all the while until I felt the cold blades of the scissors against my neck and heard them gnaw off one of my thick braids. Then I lost my spirit.
Since the day I was taken from my mother, I had suffered extreme indignities. People had stared at me. I had been tossed about in the air like a wooden puppet, and now my long hair was shingled like a coward's. In my anguish, I mourned for my mother, but no one came to comfort me. Not a soul reasoned quietly with me as my own mother used to do, for now I was only one of many little animals driven by a herder. जब भी मैं आसपास कदमों की आवाज़ सुनती तो डर से कांपती हुई अपने छुपने के स्थान से बाहर झांकती। यद्यपि हॉल में जोर जोर की आवाज़ें लगाकर मेरा नाम पुकारा जा रहा था और मैं जानती थी जुडविन तक भी मुझे खोज रही थी, फिर भी मैंने उत्तर देने के लिए अपना मुंह नहीं खोला। फिर कदम तेज हो गए और आवाज़ें उत्तेजित हो गईं। आवाज़ें पास और पास आती गईं। महिलाओं और लड़कियों ने कमरे में प्रवेश किया। मैंने अपनी सांस रोक ली और उन्हें अलमारियों के दरवाजे खोलते हुए और बड़े बड़े संदूकों के पीछे झांकते हुए देखने लगी। किसी ने पर्दे ऊपर उठा दिए और कमरा अचानक रोशनी से भर गया। मैं नहीं जानती कि उन्होंने झुककर पलंग के नीचे किस कारण देख लिया था। मुझे बाहर घसीटा जाना याद है। हालांकि मैंने उग्रता से पैर पटकते हुए और खरोंचते हुए विरोध किया था। अपनी पूरी ताकत लगा देने के बावजूद मुझे सीढ़ियों से नीचे ले जाया गया और एक कुर्सी पर कसकर बांध दिया गया। मैं पूरे समय अपना सिर हिलाती हुई जोर से चिल्लाती रही जब तक कि मैंने अपनी गर्दन पर कैंची के ठंडे ब्लेड्स को महसूस नहीं किया और उन्होंने मेरी एक मोटी चोटी कुतरते हुए नहीं सुना। फिर मेरा जोश ठंडा पड़ गया। जिस दिन से मुझे मेरी माँ के पास से ले जाया गया था, मैंने अत्यधिक अपमान झेले थे। लोगों ने मुझे घूर कर देखा था, मुझे किसी कठपुतली की तरह हवा में उछाला गया था और अब मेरे बाल किसी कायर की तरह छोटे छोटे काट दिए गए थे। अपनी पीड़ा में मैं अपनी माँ के लिए कराही, लेकिन मुझे भी कोई सांत्वना नहीं देने के लिए आया। किसी ने भी मुझे नहीं समझाया जैसे कि मेरी माँ मुझे अक्सर समझाया करती थी, क्योंकि अब मैं किसी चरवाहे द्वारा हाँके जाने वाले बहुत से छोटे छोटे पशुओं में से एक पशु मात्र थी।